So first of all, many congratulations on behalf of Insight Academy. How do you थैंक यू feel? कैसा लग रहा है आपको? मैम। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ऑल इंडिया में रैंक 10 लाना मैंने खुद उम्मीद नहीं किया था, परंतु आ गया तो काफी अच्छा लग रहा है। परिवार घर वालों पे का सपना कैसा मेरा माहौल सपना। है? घर पे सब लोग काफी खुश हैं, काफी दुआएं दे रहे हैं सब लोग, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। So what has changed since you cleared the exam and before you were preparing? सब कुछ चेंज हो गया। पहले मुझे एक दिन में एक भी कॉल नहीं आता था, अब मुझे एक दिन में 100 कॉल आते हैं और साथ ही साथ मतलब काफी कुछ बदल गया है रिजल्ट आते ही। So Satyam, आप इतने young हैं, so when did you start your journey? When did you think that you want to become a civil servant, and when did you start your preparation? Civil services has always been my mind from starting, but the real kick came in the first year of my preparation, first year of my graduation. तो आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के डेज से ही शुरू हो गई थी या आपने कॉलेज खत्म करने के बाद आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी? मैंने प्रिपरेशन अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में शुरू कर दिया था, यानी 5वें सेमेस्टर में मैंने शुरू कर दिया था एकदम सीरियस प्रिपरेशन। व्हेन आई एम सेइंग सीरियस, इट मींस गिविंग 8 to 10 आवर्स डेडिकेटली टू द प्रिपरेशन। रूम में बंद होकर 8 से 10 घंटे पढ़ना है। और कॉलेज के थर्ड ईयर मैंने शुरू कर दिया था और उसके अगले साल ही मेरा प्रीलिम्स एग्जाम और सेमेस्टर एंड दोनों सब कुछ साथ। Now the exam is divided in 3 stages. So what was your strategy for the preliminary stage, as the prelims exam is approaching in another 2 weeks at the most? So आपने अपनी prelims की तैयारी कैसे करी? आप कुछ suggestions देना चाहेंगे जो बच्चे इस बार prelims में बैठ रहे हैं उनके लिए? So share about your experience with the prelims stage. I particularly feel that prelims is the most unpredictable stage of this exam and somewhat difficult too. And for me, the strategy was divided into 2-3 points. The first thing is that you have to go through the standard books at least 10 times. तो लक्ष्मीकांत है, मैंने उसे 15-20 बार पढ़ा होगा कम से कम। स्पेक्ट्रम को भी मैंने 10 से 15 बार पढ़ा होगा। बाकी सारी किताबों को मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा। तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है, काफी लिमिटेड सोर्स आप रखें, काफी लिमिटेड, बट उसी लिमिटेड रोज के नंबर ऑफ रिविजन्स करें। 10 बार पढ़ने के बाद ही ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब मैं अगर मॉक्स दूंगा, अब मैं अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व करूंगा, देन आई विल गेट गुड मार्क्स। पहला तो ये हो गया। दूसरा, प्रीलिम्स एग्जाम के 3 महीने पहले एटलीस्ट मॉक्स देना शुरू करें। उसके पहले आपको मॉक्स नहीं देने हैं, बस एक बार देख लिया करें बीच में, and try to score good marks in mocks, because for in my case the number that I used to get in mocks actually reflected in the real prelims. So mocks are very important. I gave around 100 to 120 prelims mocks, and I revised those mocks, the solution of those mocks, around 4 or 5 times. So give mocks, revise the solution, stick to the basic rules, and increase the number of revision. So this would be. What do you think about the role of NCERT books? How important were those books in your preparation? I feel that NCERT books are the foundation of this whole process, because they provide you the basic concepts that are needed to understand the further standard books. But again, you do not have to go through the class 6 to 10 NCERT. I only refer to class 10th and 12th NCERT, and that too for only some subjects like geography. I read the macroeconomics of an economics part, and I went through the old NCERTs of ancient India and medieval India. So only selective, that is only history, economics and geography. तो पहले अटेम्प्ट में आप 10वीं रैंक आपने प्राप्त की है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रीलिम्स के बाद जो सेकंड स्टेज आता है मेंस, उसमें भी आपकी बहुत मेहनत रही होगी। What strategy did you change after you gave your prelims? So what were the main things that the students need to keep जो इस साल मेंस लिखने वाले हैं, उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो आपने अपनी तैयारी में किया? See, I feel that means is the game of endurance. Endurance, when I say endurance, it means कि आपके पास लिखने की आदत होनी चाहिए। आपको पहले 2-3 रूल्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। पहला ये कि सिलेबस के हर टॉपिक के ऊपर, जो अच्छा खासा लंबा सिलेबस है यूपी मेंस का, उसके हर टॉपिक के ऊपर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए, और वो नोट्स आप मल्टीपल सोर्सेज से बनाएं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल उठाएं, स्टैंडर्ड बुक्स उठाएं, टॉपर्स के नोट्स उठाएं, और अदर जो भी आपको मिल रहा है उससे आप स्टैंडर्ड नोट्स बनाएं हर टॉपिक के ऊपर।
दूसरा पॉइंट ये हो जाने के बाद आप उन नोट्स को रिवाइज करें, करंट अफेयर्स ऐड करें। तीसरा पॉइंट ये, उसके बाद आप मेंस के टेस्ट्स देना शुरू करें। बिना नोट्स बनाए टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। मेक नोट्स फर्स्ट देन डू टेस्ट। और फिर आप, हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेंस में। अगर आपने छोड़ा फिर मुश्किल है आपका लिस्ट में नाम आना। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और काफी क्रिएटिव वे में लिखे है, पैराग्राफ नहीं लिखना है मेंस में। मेंस में मैंने जो किया, मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी ये था कि एथिक्स पेपर को छोड़ के कभी भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा कहीं भी मैंने फुल सेंटेंसेस यूज नहीं करे। बहुत ही प्रिसाइज, पॉइंट वाइज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स सारे भरे हुए थे मेरे पेपर्स। और जहाँ तक ऐसे पेपर की बात आती है, ऐसे बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी उसमें स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। कुछ जो है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट ऐसे का जो लिखते हैं, कुछ प्रेफर करते हैं कि हम कोटेशंस बताएं, कुछ प्रेफर करते हैं हम कुछ हेडिंग्स, फैंसी हेडिंग्स यूज करें। तो आपकी ऐसे की क्या स्ट्रैटेजी रही है? देखिए, ऐसा पेपर है जिसमें आपका जनरल नॉलेज काम आएगा। जो भी आप GS 1 to GS 4 पेपर में पढ़ रहे हैं वो काम आएगा। पर मेरे हिसाब से ऐसे के भी एक तरीके से डेडिकेटेड प्रिपरेशन जरूरी है, जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट्स। मैंने क्या किया था, मैंने मार्केट से अलग अलग कोचिंग के नोट उठा लिए थे ऐसे पे। जैसे ब्रॉड टॉपिक्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, ये सब ब्रॉड टॉपिक्स हैं। इस पे आप मार्केट से नोट्स उठाएं, उसको बार बार पढ़ें। उसमें आप करंट अफेयर मैगजीन से ऐड करें वैल्यू एडेड पॉइंट्स, करंट अफेयर्स, डेटा, फैक्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इंटरनेट पर रिसर्च करें जितना ज्यादा हो सके। जनरल कोट्स उठाएं, महात्मा गांधी के, भगवान बुद्ध के, और जो भी महान पर्सनैलिटीज हैं उनके आप कोट्स उठाएं, जनरल कोट्स जो किसी भी एस्से में लिखे जा सकते। और फिर उन कोट्स को आप एक प्रॉपर बुकलेट बना लें और उसको रटें। और फिर आप इन सब चीजों को यूज करके एस्से में लिख सकते हैं। और एस्से का स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन अच्छा होगा कि आप कोई एग्जाम्पल शुरू करें, आप कोई कहानी से शुरू करें, फिक्शन कहानी से, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए एस्से में कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई एग्जामिनर पढ़ रहा हो शुरू से लेके लास्ट तक एस्से, तो उसे ये ना लगे कि बीच में टूटा टूटा है, उसको लगे हाँ मक्खन की तरह ही निकल गया। तो उस तरीके से आप सेंटेंसेस को कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं, वो जरूर पढ़ें। और मैं आखिरी एडवाइस दूंगा एस्से के लिए कि अनुदीप पुरी शेट्टी सर की किताब है द फंडामेंटल्स ऑफ एस्से राइटिंग। वो काफी अच्छी किताब है एस्से के लिए, तो वो बाकी लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। So when you got your name in the mains list, so how did your strategy change for the interview stage? मेंस के बाद तो मैंने इंटरव्यू के लिए प्राइमरीली डैफ पे फोकस किया, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज डेज में काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, कई इंटर्नशिप्स किए हैं, कई लीडरशिप पोजीशंस लिए हैं। तो वो जितने भी कीवर्ड्स थे मेरे डैफ के, जितने भी कीवर्ड्स, इवन मैंने पिन कोड पे रिसर्च किया कि मेरा पिन कोड यही क्यों है, इसमें डिजिट्स यही क्यों है। तो छोटे छोटे चीजों पे रिसर्च करें आप डैफ के। और मैं रियल इंटरव्यू भी 80% डैफ से ही गया, और काफी कोर्डियल इंटरव्यू हुआ, क्योंकि मैं पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड था। मैंने कुछ मॉक्स दिए, जिसमें बलियान IAS में मॉक दिया मैंने, और बाकी अदर जगह भी मॉक्स दिए, और डैफ पे फोकस किया काफी ज्यादा। तो आपका जो फाइनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? बोर्ड मेंबर्स कैसे थे? वर दे कॉर्डियल और वर दे पुटिंग यू अंडर प्रेशर? हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द बोर्ड? मेरा बोर्ड डॉक्टर TC आनंद सर का बोर्ड था, और उसमें 2 फीमेल मेंबर, 2 मेल मेंबर और चेयरपर्सन थे। तो मेरा इंटरव्यू काफी मतलब कंपैरेटिवली छोटा गया, 17 से 18 मिनट ही मेरा इंटरव्यू चला। आमतौर पे 30-35 मिनट चलता है। तो सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस डैप से आए। एक कुछ क्वेश्चंस थे जो इकोनॉमिक्स से आए, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए। और जहां तक प्रेशर की बात है, तो एक मेंबर थे जो मुझे प्रेशर में डालने का कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां पे यही चेक किया जाता है कि आप प्रेशर से किस तरीके से हैंडल करते हैं। और मेरा बस एक ही गुरु मंत्र तो नहीं कहूंगा, बट एक ही एडवाइस होगा एस्पिरेंट्स को कि बी कॉन्फिडेंट। आप अपने आंसर में दिखाइए कि यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू हैव द स्ट्रक्चर्ड आंसर, एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस टू पुट दैट इनटू करेक्ट वर्ड्स। सो अगर ये चीजें उन्हें दिख रही है, तो डेफिनेटली ही विल गिव यू गुड मार्क्स, दे विल गिव गुड मार्क्स। So do you think it was more factual or just a casual cordial conversation? No, it was just a casual cordial conversation. Do not take it as a knowledge test. लोगों ने, ये स्कूल का वाइवा नहीं है कि आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा। दिस इज वेरी कोर्डियल सिचुएशन, और बहुत आराम से हो जाता है इफ यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम योर टैप्स। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी अभी कॉलेज में है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन जस्ट स्टडिंग। आप कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करो, आप अदर एक्टिविटीज करो, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट।
उसमें वो ये नहीं देख रहे कि यू हैव कितना नॉलेज है आपके पास, ये देख रहे हैं आपने कितना किया है. दिस इज वन एडवाइस, जो भी कॉलेज में है एक्सप्लोर करो कॉलेज को, अलग अलग चीजों को करो पढ़ाई के अलावा. That's very good. Now for the last, again, many congratulations from our side to you and to your family, and all the very best for your future endeavors. Thank you so much, ma'am.